Parents' responsibility is also very important in the progress of the child. That means from the school we already issues the diary and we are sending the homeworks, and what are the works we are doing, we are sending in the groups also. But we are facing the problem in the high school, that is the homeworks are not doing properly and they are not completing the notes properly. Continuously they are standing outside of the classes. This shows the irresponsibility of the parents. Once the student or the child come to the home, you have to take the responsible that once you have to check the diary, what are the homeworks they have given and what are the works they done in the school. You have to ask the student or the child, and also after that you have to sign signature in the diary, and if you are having any issues or any complaints, you can write in the diary and you can send. With your response, I will take that action and I will work on that. ये बहुत जरूरी बात बता रही सर मैडम ने, डायरी रोजाना चेक करो और बच्चा को हमें लोगों बैठो जनता बच्चों को कि बच्चे क्या कर रहे, होमवर्क करे नहीं करे, देखो निकालो एक घंटा तो अपने बच्चों के वास्ते। ट्यूशन को भी तो भेजो, तो ट्यूशन में कितना फायदा होता नहीं, उतना फायदा माँ बाप को बैठ को सामने देख के ना उतना फायदा नहीं होता। सच बता रहा हूँ तुमने ट्यूशन में को भेजने को तुम्हें इतना रहने लगो, तुम्हें खुद बैठना कितना का भी काम रहो, एक घंटे के वास्ते अपने बच्चों को लेकर बैठते तो फिर देखो बच्चे कैसे तरक्की करते। कल भी 2 मीटिंग हो, 2 मीटिंग में बात बताया, ऑटो चलाने वालों का बच्चा नीट में पूरे हिंदुस्तान में फर्स्ट आया। ऑटो चलाता हूँ क्या उन्हें बोलते हैं पेपर में, उन्हें बोला मैं बच्चे को 1 घंटा में बच्चे के सामने बैठता, मुझे क्या नहीं आता लेकिन मैं बच्चे को सामने बिठा कर पढ़ाता हूँ, जैसा कि मुझे सब कुछ आता मेरे को। बच्चा मेरे सामने को पढ़ता था, वो पढ़ते पढ़ते पूरे हिंदुस्तान में फर्स्ट आया। क्या करो खाली 1 घंटा बच्चे को मैं दिया सुनो को। अब तुम सब हमारे बच्चों के वास्ते 1 घंटा नहीं दे सकते क्या? बोलो बैठ को डायरी देखो क्या होमवर्क कर रही, वो होमवर्क लिखा दो, होमवर्क कंप्लीट हुआ तो देखो, फिर साइन करके भेजो, तब जाकर बच्चे को भी डर रहता है, फिर यहाँ बच्चा लिखने को भी आता है, सारी चीजें आसानी के साथ पूरी होती। तो ये कंप्लीट बहुत जरूरी है, अपने बच्चों को 1 घंटा हमें इबादत करना, ये अच्छा है मतलब तभी हमारे बच्चों की तरक्की वजह से, नहीं तो हमारे बच्चे तरक्की नहीं करते। And FA2 will be start from the September 2nd. So regularly from next 2 weeks we are continuously doing the UDs also. You just take care of the students or the child for the preparation of the test also. And next point is, this academic year we started the giving rewards to the students based on their performance and attendance champions and also the star awards. Attendance champions means the students who are coming regular and punctual to the school without absentees. We are giving the awards to those students. We are not giving in every month. We are changed this to the 2 months once and 3 months once. Next one is Star Awards. Star Awards means I think already your childs are wearing the badges, merit badges and the star badges. The star badges is based on all-round improvement. That means punctuality, completion of notes and homeworks regularly, and behavior in the classrooms, respecting to the teachers and the elders. By observing all these things, every week the class teachers will give the stars to those students. The student who got the highest stars in the whole month, that student will reward as a star student or the star badge to that student, and it will be reward every month. ये भी बहुत जरूरी है। जो बच्चों को अच्छा पढ़ रही, अच्छे अखलाक से पेश आ रही, उस्ताद के साथ अच्छा पेश आ रही और पाबंदी से आ रही, यूनिफॉर्म के साथ आ रही और अर्ली आ रही, लेट भी नहीं आ रहे, तो उनको स्टार्स दे रही। हाँ, टोटल स्टार ज्यादा जिसके आते हैं उनको मंथली उन्हें क्या बोलते सर? हाँ बैजेस, वो बैजेस भी उनको देते हैं मंथली। तो बच्चों की तरक्की के वास्ते हमें कर रही, तो ये सारी चीजें को बैठ के मालूम होता सर। तो दूसरी बात क्या है, जब तक पेरेंट्स से आते नहीं है, वो बच्चे अगर अच्छा भी ये कर रहे, अखलाक में भी अच्छे हैं, सारी चीजें अटेंडेंस में भी है, लेकिन उनको कोई जवाब नहीं दिया होता। ये बात मैनेजमेंट में ये मशवरे से तय होता है। बात जो पेरेंट्स मीटिंग को आते नहीं, उनके बच्चे चाहे अच्छा पढ़ते रहेंगे या तो उन्हें फुल अटेंडेंस रहेंगे, उनको
इस वास्ते के पेरेंट्स उनके मीटिंग में आते नहीं। मीटिंग में आना बहुत जरूरी है पेरेंट्स का। तो इसके वास्ते हमें बच्चों को तरक्की के वास्ते हर क्लास में ये आवाज देने बच्चों को, जब बच्चे जल्दी आगे बढ़ेंगे हमारे बच्चे घर को, तो हमें उसकी निगरानी करना, पूछना बच्चों को तुम्हें कितने स्टार लिए बेटे घर को, जारी का बराबर है। स्टार उनको मिलते हैं जो पूरे के पूरे रहना, यूनिफॉर्म में सही रहना, अटेंडेंस में फुल रहना, अखलाक में अच्छा रहना, टीचर्स के साथ अच्छे बिहेवियर करना, इनको मिलती है सर। ये सारी चीजें अपने बच्चों को बताओ ताकि हमारे बच्चे क्लास में फर्स्ट आए, बच्चों के अखलाक अच्छे हो, तो उन्हीं को मिलेगा। अब जब तक पेरेंट्स आएंगे नहीं उनको कोई आवाज नहीं मिलता, याद रख लो। And next award is about the toppers. That means who are scoring highest marks in the test. FA, FA2, FA3 and FA4, SA1. All those students will get the merit badges, first rank, second rank and third rank. That badges will be revolved. That means if any student is scored 90% or 92% in the first FA1, maybe in the next test it will score less. So that badge will be changes to the another student. So it will be revolved every month and after every test. So these are the points I need to put in front of you. I hope you will all cooperate with all these points. Jazakallah. ठीक है, जितनी बातें बता को ही नहीं, ये सारी बातों पर हमें इसके पाबंद रहते हैं, इंशाल्लाह फिर हमारी तरक्की होती है। समझ में आ रहा है? अपने को कितने पेरेंट्स आते नहीं, अब उनको ये बातें पूरे कैसे मालूम होना। अभी जो उसके बाद भी थोड़े आप नहीं, मेरा ख्याल से 40 आते थे, अब 60 पेरेंट्स आपको रहेगा पूरे 208 में से। तो इनको कैसे मालूम होता है कि ये सारी चीजें तरक्की करने के हमें पूरी यहाँ से कोशिश करनी, बच्चों की तरक्की हो, हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे तो पूरी कोशिश करनी है हमें, लेकिन हमारी कोशिश सक्सेसफुल नहीं हो रही, इसके वास्ते के पेरेंट्स का कोऑपरेशन नहीं है। जब तक कोऑपरेशन नहीं होता पेरेंट्स का टीचर्स के साथ, तो फिर मीटिंग में आना, ये तो पेरेंट्स की और टीचर्स की मीटिंग थी, अभी मीटिंग 2 बजे तक है, लेकिन अभी थोड़ी देर में आपको भेजेंगे वहां पर, पूरे इंतजार करेंगे आपको टीचर्स, वहां जाकर बोलते बच्चों का प्रोग्रेस क्या है, कि हमारे बच्चे क्या प्रोग्रेस, कौन से साइंस में कैसा, सोशल में कैसा है, अरबी में कैसा है, ये सारी चीजें इंशाल्लाह अभी आपको इंशाल्लाह भेजेंगे वहां पर। 1 घंटे आपको टाइम मिलेगा, आप जाकर पूरे उनको बताएंगे टीचर्स आपको कि क्या तरक्की कैसे करना है। आप भी क्या करके बोलना तो टीचर्स को हम बोल भी सकते हैं। अब ये सारी चीजें जब तक पेरेंट्स नहीं आओ, बोलो क्या करना सर, आप बोलो, आप जो आगे बजाय कर ले, आप तो आ गए, अभी 100 से ज्यादा पेरेंट्स आते नहीं, अब उनके बच्चों का हाल क्या, उनके बच्चों का प्रोग्रेस कौन देखना, सोचो कैसे तरक्की होगी। ये सारी चीजें हैं, इसके वास्ते हमें इसका बहुत ध्यान देना। और दूसरी बात यह है कि हमारे बच्चों को अभी 16 बच्चे हैं हिप्स में, सुपर 40 में ही, किसके हमारे गर्ल्स, सिर्फ अभी मैं सिर्फ गर्ल्स को बनाया था सुपर 40 को, दूसरे बॉयज भी है उसके अंदर, अलग उनके सेक्शन भी है, लेकिन ये बच्चे को हमें पूरी कोशिश करनी है ना इसमें, जिन जिन के बच्चे सुपर 40 में थोड़ा हाथ उड़ा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, 1 2 3 4, देखो 16 बच्चे आई सुपर 40 में, 16 है 100, इसमें आगे ऐसे 5 बच्चे के पेरेंट्स आप नहीं। कितनी बड़ी बात मालूम, सुपर 40 में बच्चों को वो सुबह से लेकर 6 बजे से शाम को 8 बजे तक कुरान की तालीम दे रहे हैं, हाफिज कुरान बनाने के वास्ते कोशिश कर रहे हैं यहाँ से कि बच्चे हाफिज कुरान बन जाए। पूरे हमारे जिम्मेदारों की, मोहतरम साहब की, हमारे सईदुर रहमान साहब की, हमारे मौलाना हसीन साहब की पूरी कोशिश कर रही कि बच्चे हमारा तरक्की करो। क्योंकि तो इससे पहले तुमने मालूम था 2 घंटे पढ़ाते थे स्कूल क्या अरबी का, पूरे उसमें 2 घंटे अरबी की तालीम होती थी, बाकी सब दिन दुनिया की तालीम होती थी। तो इसमें मालूम हुआ कि 2 घंटे में हमारे बच्चे हाफिज कुरान नहीं बनते। हमने मालूम होगा, हमने अल्लाह कराम भी बताओ क्या सुबह से शाम तक वक्त बच्चे, पूरे बच्चे हरकत तैयार करके मदरसे के बच्चे 6-6 साल लेते हिफ्ज करने के वास्ते, पूरे 8 साल ले लेते, वो 4 साल कम से कम। अब वो सिर्फ 2 घंटे में कैसे हो सकता है? तो मालूम हुआ हमने कि 2 घंटे में हिफ्ज में क्या पूरा है, हाफिज नहीं हो सकते। तो 2 घंटे में भी इंशाल्लाह बड़ा फायदा हुआ तुमने मालूम कि ये बार एसएससी का जो रिजल्ट आया नहीं, 100% रिजल्ट हमारे स्कूल का आया सो, और उसमें एक बच्ची 91% लिए 8 पारे हिफ्ज कर दो, राबिया जिसका नाम है। और जो दूसरे बच्चे हैं उनके
पारे 6 पारे हिफ्स करिए सो हिफ्स के मामूली बातें समझते हो अल्लाह 6 पारे हिफ्स का करना तजवीज के साथ ये इतनी बड़ी बात हो गई अल्लाह सोच तो आदमी का दिमाग काम नहीं करता पता नहीं लोगों को इस स्कूल की कदर मालूम नहीं है सच बता रहे सो ये स्कूल की कदर बिल्कुल मालूम नहीं पेरेंट्स को कुरान सही होगा बहुत बड़ी बात है हिफ्स करना तो कितनी बड़ी बात है एक जमाना आता है तुम्हारे घर पूरे मकतब बन जाते हैं इंशाअल्लाह हमें बच्चों को मैं खुद बताता हूँ हाजी साहब खुद बताती जब तुम्हें पूरा कुरान सीख लेती तुम्हें घर को जाती जब घर में रहती तो 1 घंटा अतराफ के मोहल्ले के पूरे औरतों को जमा कर उनके पूरे औरतों का खुराक ठीक करना तुम्हारी जिम्मेदारी है हम यहाँ से बच्चों को बोल रही ये बच्चा बहुत तरगीब करी जब तक ख्याल रखती करो जब शादियां होकर जाती तो वहां अपने मोहल्ले में बनाओ वहां दीनदार बनाओ अपने बच्चों को फिर एक तो इनकी नस्लों को इनकी नस्लें सही हो जाती इनकी नस्लों में कुरान सही हो जाता है जब माँ कुरान हिफ्ज करते हैं कुरान सही है बच्चों को नहीं कराती क्या बच्चों को इनकी नस्लों को फायदा हो जाता है फिर उनके मोहल्ले में भी फायदा हो जाता है तो हम हमें क्या करें सुपर फार्टी बना को इंशाल्लाह 2 घंटे सिर्फ असली तालीम दे रही उल्टा कर वालों से 2 घंटे असली तालीम उनकी अटेंडेंस भी चलते रहती है बाद में उनके टेस्ट भी चलते रहते हैं इंशाल्लाह ये 4 साल में इंशाल्लाह हिफ्ज हो जाती है यानी वही तक आए तक हिफ्ज हो जाती है इंशाल्लाह तो फिर उसके बाद पूरा का पूरा स्कूल पढ़ती 2 घंटे दौड़ों में रख लेती इंशाल्लाह ये पूरी कोशिश हो रही है इंशाल्लाह पता नहीं अब ये ऐसे नहीं होता है ये ऐसे नहीं होता है कि वो इतना सब बनाए के बाद कैसे होगा तो मैं बोलते जब तक माँ बाप अपने घरों में बच्चों को रोजाना सदका देकर रातों में उठकर दुआएं कर रहे तहज्जुद में और जो पेरेंट्स पाबंद है दीन के आज बोल तो पूरे पेरेंट्स यहाँ पर ही हमारे बच्चे दीनदार बनना नहीं बनना बोलो साहब अरे बनना नहीं बनना दीनदार बनना तो सबसे पहले हमें सब दीनदार बनना है हमें सब दीनदार बनना जब तक हमें दीन के पाबंद नहीं होते नबी के तरीके के और अल्लाह के हुक्मों को पूरा नहीं करते हमारे बच्चे हाफिज बन जाना हमारे बच्चे के अच्छे अखलाक हो जाना ये सवाल ही पैदा नहीं होता ये हकीकत बता रहे सो माँ बाप के असरात बच्चों पर पड़ते सो हमें स्कूल में जमा वाले अली पब्लिक स्कूल में सुपर पार्टी में हमारे बच्चे हैं हाफिज कुरान हो जाके हमारे यहाँ जिक्र छूट गया हमारा तिलावत छूट गई नमाज छूट गई सुबह शाम हम मोबाइल में देख लेते बेटे मोबाइल अल्लाह कभी भी तरक्की नहीं होते बच्चे याद रखो हमारे बड़े उलमा कराम फरमाते कि कर में तो कांटे उठते हैं फूल नहीं खेलते जिस घर में शरीयत और सुन्नत नहीं है जिस घर में नमाजें नहीं तिलावत नहीं उस घर के बच्चे हाफिज बन जाते हैं बोलो तुम्हें हाफिज को कैसे बनती है माँ बाप का असर बच्चों पर पड़ता है बच्चे जब तक माँ बाप दीनदार होते कि उसका असर बच्चों पर पड़ता है हाँ इस बात से बोलते कि अपनी जिंदगी को पाक साफ रखो कल भी मैं बताया पूरी बात देख बता रहा हूँ क्यों पेरेंट्स आपको इनको दीन की बात बताना बहुत जरूरी है यहाँ तक बताती माँ के पेट में बच्चा है अभी दुनिया में नहीं आया लेकिन माँ क्या टीवी देखने की मोबाइल देखने की या गैर गलत चीजें देखनी या नामुनासिब चीजें देखनी तो अल्लाह वाले फरमाती कि उसका असर बराह रास्त बच्चे पर पड़ता है ये हकीकत है क्या भी ऐसे में नहीं बोल रहा मैं हमारे बड़ों की बात बता रहा हूँ एक अल्लाह वाले थे उनका बच्चे की चीज उठा लिया बगैर बोले के अभी उसका कंप्लेंट गया उनके पास माँ बाप के पास तुम्हारा बच्चा इस बच्चे की एक चीज चोरी कर ली अरे पूछे बगैर उठा लिया माँ बाप परेशान हो गए दीनदार थे माँ बाप परेशान हो गए अरे कैसे हो गए हमारे बच्चे के अंदर तो दोनों माँ बाप बैठकर सोचे गए हमारे इसी क्या अमल हो गया हमारे से कि हमारा बच्चा भी हमारे बच्चे से हरकत हो गई सोच के तो समझ में नहीं आया बाद में उनकी अम्मा बोले कहते मैं जब मेरे पेट में था एक खजूर का झाड़ का वो इधर भिन्नों को हमारे घर की तरफ कानपुर में एक खजूर नीचे गिरा मैं उठा को खाली थी हो सकता है इसका असर मेरे बच्चे पर पड़ता अल्लाह आग को रोकते खड़ा हुआ इसीलिए हमारे बड़े फरमाते कि हम माँ बाप जितना दीनदार बच्चे की बच्चों पर असर पड़ता है बच्चों पर असर पड़ता है तो इसके असर बहुत जरूरी है कि हम दीनदार बनना हमारे पाबंदी के साथ दीन पर रहेंगे इंशाअल्लाह बच्चों को दुआएं करेंगे तब जाकर हमारे बच्चे हाफिज कुरान बनेंगे या कम से कम कुछ पारे को हिफ्ज करेंगे हाफिज कुरान बनना मामूली बात है हमारी बच्ची में हाफिज कुरान बन जाओ पूरे टुमकुर में छान मार डालो 3 से 4 मिलेंगे क्या जी सब क्या पूरे टुमकुर
घर में एक एक बच्चा हाफिज कुरान, एक एक बच्ची हाफिज कुरान होगा इंशाअल्लाह। हमें तो पूरी कोशिश कर रही, लेकिन फिर भी अल्लाह का क्या फैसला है वो अल्लाह जानता है। इतना तो मैं बोल सकता हूँ, पेरेंट्स की फिक्र को बजानी इंशाअल्लाह, पेरेंट्स की दुआएं, माँ बाप की दुआएं इंशाअल्लाह, फिर यहाँ की मेहनत है इंशाअल्लाह, उनके आना बराबर उनकी फिक्र करना, फिर देखो अल्लाह ताला तरक्की करते करेंगे सब इंशाअल्लाह। अपने घरों में पालन करना। दूसरी बात, दो चीजें मैं आपको सबको कल से बता रहा हूँ। देखो आज सबसे बड़ा फितना मदन का है, इससे बड़ा फितना दुनिया में कोई नहीं है। हर नबी के जमाने में बड़ा फितना होता था, इस उम्मत का सबसे बड़ा फितना मदन है, मदन और इंटरनेट है। आज पूरे जितने भी बुराइयां कोई नहीं, वो पूरे बुराइयां मोबाइल आए जब से तस्बीहात खत्म हो गए। आप नहीं कर रहे, नहीं, आप लोगों की बात बता रहे हो, घर की तालीम चली गई, तस्बीहात खत्म हो गए, कुरान पढ़ना छूट गया। देखो तुम्हें सोच कर देखो, जब से मोबाइल आया नमाजियों में तादाद कम होगी, पूरे नमाजियों में एक एक सफ भी नहीं होती, मसाजिद में एक एक सफ नहीं होती। अभी एक जगह हमें गए कि हम शहर में, नाम नहीं लेता मोहल्ले का, एक सफ नहीं है, पूरे मोहल्ले में मुसलमानों के घर। जब मुलाकात को गए तो पूरा मोहल्ला कब्रिस्तान, एक किसे उठाते भी उठने तैयार नहीं, उसे पुकारते भी उठने तैयार नहीं। क्यों? रात भर मोबाइल देखना, दिन को सो जाना, कैसा तरक्की होती है? तो बोलो, सबसे बड़ा फितना इस वक्त में अच्छी तरह याद रखो। इस वास्ते दो चीजें इंशाअल्लाह मैं भी करता हूँ, आप भी करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे। यहाँ से कसम खा के जाना यहाँ से कि इंशाअल्लाह इसके बाद हम 10 बजे के बाद मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। अगर हमारे बच्चों की तरक्की होना है, हमारे घरों में चैन सुकून मिलना, हमारे घरों में खुली मदद देखोगे इंशाअल्लाह। आप 10 बजे के बाद मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेंगे और 10 बजे के बाद जागेंगे नहीं, सो जाना। हदीस में, हमारी शरीयत में रात को जागना बना है। यहाँ तक कि अबू हनीफा, जिनके हम सालों से बताते हैं कि इशा के बाद बात करना भी मकरूह है। क्या मालूम? अगर दर्स और तदरीस है, यानी सीखने सिखाने का है, तो उसे जायज है, सीखना सिखाना है, थोड़ी देर के वास्ते कर सकते हैं, वरना इशा के बाद कोई काम नहीं है। इशा के बाद इंशाअल्लाह 10 बजे के बाद हम बच्चों को सुलाएंगे, फिर सुबह में उठाओ, उनको फजर की नमाज पढ़ाओ, उसके बाद फजर की नमाज पढ़ाने बैठो। मैं कसम खा के बोलता हूँ, देखो जब कैसी बरकतें हमारे घरों में आएंगी, आप देखेंगे इंशाअल्लाह। तमाम खुराफात खत्म हो जाएंगे हमारे घरों से। जितने फितने, जितने ये बुराइयां आ रही, जितने लड़कियां घरों के साथ जा रही, वो सब मोबाइल का फितना है। मैं नहीं, हमारे पीर ज़ुल्फ़िकार दामद बरकातहू, अल्लाह उनकी उम्र बरकत अता फरमाए, उन्होंने बोले 200 से ज्यादा लड़कियों को मैंने इंटरव्यू लिया जो घरों के साथ चले गए। तुम्हें जाने का रीजन क्या? तो सब ने एक बात बता दिया, डॉक्टर साहब सुन रहे, सब एक बात बता रहे, क्या बताओ, मोबाइल की वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। आप सोचो, इस वास्ते बच्चियों को मोबाइल दोनों को अगर जरूरत है तो सामने बिठा के पढ़ो, सामने बिठा के पढ़ो और देखो क्या देखने मोबाइल में क्या नहीं देख रही। बहुत जरूरी बात बता रहा हूं तुम्हें, इंशाल्लाह सब नियत करो, 10 बजे के बाद हमें खुद नहीं देखेंगे मोबाइल, फिर देखो बच्चे भी इंशाल्लाह इसके असरात पड़ेंगे और रात को देर से नहीं सोएंगे, जल्दी सोएंगे, जल्दी उठेंगे, इसमें हमारी तरक्की होगी इंशाल्लाह। आखिरी बात यह है कि हम जहां भी पूरे हमारे गांव को तबलीग की पहले से पूरी मेहनत ये हो रही है। आज इंशाअल्लाह किप्तूर में जो परसों जोड़ हुआ, हमारे बड़ों की फिक्र बता रहे, पूरी दुनिया हमें बात चला रही, क्या कहते, हर ईमान वाले का कनेक्शन मस्जिद से हो जाना कहते, यानी मर्द का ताल्लुक मस्जिद से हो जाना और हर औरत का ताल्लुक एक इज्तिमाई, वो जो तालीम होती है मोहल्ले में, हर जगह इज्तिमाई तालीम होती है, यानी इज्तिमा होती है औरतों का, हर जगह इज्तिमा होता है। हर औरत को कम से कम 1 घंटा हफ्ते में 1 मरतबा अपने टुमकुर में हर मोहल्ले में इज्तिमा होता है, आपको मालूम है। अभी हमारे बड़ों ने हफ्ता इतवार करने के वास्ते बोल रही, हर हफ्ते में इतवार के दिन भी रखो ही, हफ्ते के दिन कई को रखिए इतवार को बोलो। स्कूल को जाने वाले लड़कियां, कॉलेज को जाने वाले लड़कियां, गारमेंट्स में जाने वाले औरतें, हमारे पढ़ाने जाने वाले ऑफिसर वाली, इनके वास्ते ये भी हर हफ्ते में है, हर मोहल्ले में। तो हमारे बड़ों की फिक्र है कि हर ईमान वाला मस्जिद को आए, मर्द औरतें वो अपनी इज्तिमाई तालीम में जाए और हर बच्चे का ताल्लुक मकतब से हो जाए, यानी मस्जिद में जो बच्चा मकतब पढ़ाती, वो मकतब को हर बच्चा मकतब को आने वाला बन जाए। औरतें मोहल्ले में एक हफ्ते में 1 बार इज्तिमाई तालीम में जुड़ जाए और मर्द हजरात 5 वक्त के लिए नमाज को मस्जिद में आ जाए, ये बहुत जरूरी है, करेंगे सब इंशाअल्लाह। और दूसरी तो आखिरी बात ये है कि हम थोड़ा बच्चों को कुछ आगे पीछे हो गया तो बच्चों को हम आकर
यहाँ से बात करें, यानी मैनेजमेंट से बात करा कर इत्मीनान के साथ, ये नहीं कि भाई वहां से गलाटा कर लेना, ये सारी चीजें करना, ये सब बिल्कुल मुनासिब नहीं है। हमें क्या भी बच्चा के दुश्मन नहीं, क्या कि कुछ ना कुछ हो जाता है। अब इतना बड़ा निजाम, 1000 बच्चे हैं से पूरे मिला को 1000 बच्चा, घर में 3 बच्चों को संभालने नहीं होता, 2 बच्चों को, अब 1000 बच्चे रहते कहीं ना कहीं कोई झोल पड़ जाता है। तो हमें उसे क्या करना, आगे बैठना, इत्मीनान से बोलना, ऐसा हो रहा है, ऐसा टीचर फला में करता है, उनको तुम्हें बोलो, हमें पूरा तरह तुम्हारा साथ देंगे इंशाल्लाह। वो चीज को हमें दूर करेंगे, जो भी तकलीफ परेशानी आती है उसे दूर करेंगे, मिल बैठ कर करेंगे इंशाल्लाह, साथ में बैठकर। ये नहीं कि झगड़ा कर जाओ तो क्या फायदा, उससे झगड़ा से कोई फायदा नहीं होता। एक बात, दूसरी आखिरी बात यह है कि हम जब तक यहाँ पेरेंट्स आप रहे, सबसे ज्यादा जो परेशानी हो रही है फीस की हो रही परेशानी। कल से बताइए, फीस इतनी फीस कम है तब भी देने तैयार नहीं। गैरों के स्कूल में कल भी बताया मैं कि 2-2 लाख रुपए ले रही, 1-1 लाख रुपए ले रही। वहां जाकर बिस्मिल्लाह का बात ही नहीं है, वहां बिस्मिल्लाह नहीं, उसका बात ही नहीं, उनका स्लोगन हो के खाना हमारे रिलेशन में चाहिए। अब हमारे खुद हमारे बहन का गया था, हमारे बहन के यानी हमारी भांजी के बच्चे पढ़े, कितना डोनेशन दिए, तो 2 लाख रुपए डोनेशन देते LKG को। यहाँ कल पूछे हमारे इनके धोनी साहब को बेबी होना क्या था, वो 7,000 रुपए दिया, कहा जमा करते सब वरिंग में, ऐसा प्रोडक्ट्स में 1 लाख रुपए। अब यहाँ पूरा तुमने स्कूल की पढ़ाई के साथ पूरे 20 कमों पे 20,000 ऑफिसों अरबी पढ़ा दो, इतना सब कर तो बेबी सिटिंग को 15,000 रुपए, LKG को 18,000 रुपए, UKG को 20,000 रुपए, फर्स्ट स्टैंडर्ड से SLC तक 25,000 रुपए, इंक्लूडिंग बुक्स एंड यूनिफॉर्म। अगर ये ज्यादा है तो बोलो इसमें से, अभी मैं देखो ये तो फीस मेरी से ज्यादा है, बोलो बोलो, बोलते भी है तो तुम्हें फीस ज्यादा लेनी तो खड़े हो तो बोलो, ये फीस हमें देने होता नहीं, ये फीस ज्यादा लेनी तुम्हें करको, ये फीस में क्या हजरत आपको देती, अरबी पढ़ाने वाले को क्या टीचर्स को देती, सोचो तुम्हें, उन्हें कई को लाख रुपए ले रही, जबकि वह अरबी भी नहीं, क्या भी नहीं है। मैं ये क्या वास्ते बोलने को, तो ज्यादा हमें बढ़ाने का रखो, तुम्हें ज्यादा हमें दो तो कोई भी नहीं बोल रहा, कम से कम जो फीस है वो कम से कम लाखों बराबर रखने के वाले। मैं सच बता रहा हूं, हमारी स्कूल पूरे इस तरह से आगे आगे इंशाल्लाह चली जाती। बहुत सारे पेरेंट्स की अभी तक फीस आपको नहीं, गुज़िश्ता साल के भी थोड़े बैलेंस ही, अभी भी बैलेंस ही, जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देते नहीं। तुम्हें सब बोलो जिम्मेदार, कैसे स्कूल चल रहा, क्या पेरेंट्स से फीस है तो कम से कम इतनी फीस भी नहीं है तो फिर स्कूल कैसा चलते हैं, टीचर को घर में कैसे देना, सबके पूरा का टीचर मेन रीजन क्या होता है, फीस आ गई तो पूरा सब बराबर चलता रहता, टीचर्स भी बराबर आती, अच्छे टीचर्स भी मिलती, सारी चीजों करने आसान हो जाता है। इसके वास्ते मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो अभी तक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के थोड़े पैसे बैलेंस है, उन्हें पहले लाखों तुम्हें क्लियर करना हो। अगर दूसरे इंस्टॉलमेंट के अभी अक्टूबर में है सो, जिनके पास अल्लाह दिया ताकत, मैं बता रहा हूँ, जिन्होंने है पैसे उन्हें लाखों दिया लो, मैं बोलता हूँ उसका अगले साल भी अल्लाह तुम्हें देती है इंशाल्लाह, जरूर देती है इंशाल्लाह। हमें यहाँ से कमर्शियल नहीं है, घर से बिल्कुल आप वो मत समझो कि कमाने की स्कूल है, कौन कभी नहीं मालूम ऐसा बहुत करेगा, अल्लाह उनको हिदायत देना बंदे। हमें आज तक का गिलास पानी भी इस्तेमाल नहीं करते, मैं भी हाजी साहब 1 गिलास पानी 20 साल होगा, वो भी हमें उसे स्कूल का तुम्हें लेने के बोले, स्कूल नहीं हो, मेरे भी हाजी साहब के नजदीक वो स्कूल नहीं, वो भी मदरसा हो, हमें उसे मदरसा नाम की देनी करते, तुम्हें सब जमाते नहीं, मदरसे को जमाते कर दो, मदरसे जमाते किसे कहते हो, पढ़ना नहीं आता ना, दबदम होता ना, जब तुझे मदरसे डालते हो करके लगा मदरसे जाती सो, अल्लाह उसकी बरकत से इंशाल्लाह मुझको हाफिजा बनावा थी, अल्लाह की वो किए, तो हमें इंशाल्लाह थोड़ी इंशाल्लाह इसकी फिक्र करेंगे इंशाल्लाह, तो फिर देखो इंशाल्लाह हमें इसकी हमें क्या बोलता हूँ, क्या बोला सर जी, हाँ कमर्शियल नहीं, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये बिल्कुल कमर्शियल नहीं है, ये जब तक तुम्हारे पास ले रही नहीं वक्त जितनी जरूरत है उतनी फीस लेते हैं। अच्छा चलो इसमें भी 1,000 बच गए, 2,000 बच गए, सीधा तुम्हारे पैसे मदरसे हो जाते, जहाँ बच्चे पढ़ा नहीं करें, एक पैसा भी इधर नहीं होता आपका, 1 रुपया भी। आज तक 20 साल हो गए, 1 गिलास पानी आता नहीं पीते हमें, पानी पियो तो भी उसके पैसे बंद होती, गर्म जो हमें बैठते ना फैन का उसकी भी एक बिल बंद होती, कहीं को कर होता सभी हमारे बच्चे तरक्की कर
में सब समझदार ही इसके वास्ते में तुम लोग बोलो सो दूसरों को भी इसकी तरबियत दिलाओ। अगर स्कूल उठा कर क्या करते हो, बेकार हो तो नहीं भी चलो कौन ये सब झंझट करने वाला कर को हमारा घर का था तो हमारे घर को हमारे तक देने वक्त नहीं हमने हमारे घर वाले कुछ नहीं तुम्हें घर को देने वक्त नहीं तुम्हें खाली सुबह से स्कूल दिन करते रहो या घर को क्या कि बच्चे तरक्की कर डालेंगे ना कर को हमें क्या करें पूरा वक्त यहाँ देंगे। अब उसे तुम्हें सपोर्ट नहीं करो तो फिर क्या अभी स्कूल में ही तो कहा जमा देते तुम मिसाल के तौर पर अली पब्लिक स्कूल यहाँ नहीं खोलती तो तुम्हें कहा जमा देते बोलो मुझे सब रायों के स्कूल में जमाते थे क्रिश्चियनों के स्कूल में जमाते थे। क्या होता हमारे बच्चों का कहते बच्चों को खुशी हो रही देखकर बच्चे अटैक पर यूज कर लेकर फिर उसी में चले गए साथ साथ पर डिस्टिंक्शन लेकर अब सुपर पार्टी के बच्चे हाथों से पुराना हो जाएंगे इंशाअल्लाह अल्लाह चाहा तो इसके वास्ते जब तक पेरेंट्स से आए उस वक्त नहीं पहले फीस बन डालो सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी अगर हल्ला दिया है अक्टूबर में बता सो हमें नहीं पूछते लेकिन जिनको दे पाए तो लाकर दे डालो इंशाअल्लाह उसका अगले साथ अल्लाह जरूर देती करेंगे सब इंशाअल्लाह जी जी हाँ अभी एग्रो होता है जी अभी टीचर्स इंतजार कर रही अभी 1 घंटा टाइम है 12:30 बजे ही जी जी 12:30 बजे ही इंशाल्लाह 1:30 बजे तक होता है इंशाल्लाह और आधा घंटा बढ़ाते हुए रहती है हमारे टीचर। MashaAllah, Jazakallah khairan. Let's give a big round of applause to Sadar Sir. He is spending all his energy and time for our institution. So he has his own business, but he doesn't go there. He is always here. So he is providing good support to our Haji Sahib. So we also have our madrasa ex-principal. He is also a visiting consultant. So Sayyidur Rahman Sahib, you all know, with the foundation of our madrasa, he has been here. So let's hear from Sayyid Hazrat for a few minutes, inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم واعمل للدنيا بمقدار بقائك فيها واعمل للآخرة بمقدار بقائك فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز پیرنٹس اور ذمہ داران اسکول و مدرسہ اور اساتذہ کرام، میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے روزانہ ہم اللہ کے لیے 2 گانا نماز شکریہ کے طور پر بجا لائیں تب بھی کم ہے. اگر روزانہ 2 رکعت شکریہ کے طور پر روزانہ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے تب بھی کم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بعض والدین ایسی جگہ میں رہتے ہیں جہاں ان کو اچھی اسکولیں نہیں ملتی. وہ پریشان ہوتے ہیں، مشورہ کرتے رہتے ہیں کہ مولانا کیا کریں کہ ہمارے بچوں کو دینی تعلیم والی اسکول اگر دیکھنا چاہیں تو دور دور رہتے ہیں، کہیں ہمیں نہیں ملتے. ہمارے بچوں کو لے کر جا کر پڑھانا بڑا مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہم پریشان ہوتے ہیں. 15 کلومیٹر 20 کلومیٹر پر دور مسلم اسکول ہوتی ہیں، ورنہ ساری اسکول غیرت کی ہیں. ہم وہاں پر بھیجیں گے تو پھر پتہ نہیں کیا کیا وہاں پر بچے سیکھ کر آ جاتے ہیں. عقائد ان کے بگڑ جاتے ہیں، نماز روزہ ان کی زندگیوں سے نکل جاتا ہے. تو کیا کریں ایسی اسکولوں کے لیے؟ اب کوئی دوسرا راستہ نہیں. ان کو کہیں کہ بھائی اپنا گھر وہاں پر منتقل کر لو، جہاں دینی اسکول ہے، جہاں اسلامی اسکول ہے، وہ جگہ اپنا گھر منتقل کر کے وہاں پر پڑھا لو. کہتے نہیں حضرت کاروبار بھی یہی ہے، گھر بھی خاص مکان ہے، وہاں جا کر کیسے زندگی گزاریں گے؟ مجبوراً ہم غیروں کی اسکول میں بھیجنا پڑ رہا ہے. کتنے والدین یہ کہ نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں والدین ایسے ہیں جہاں دینی اسکولوں کی تلاش میں رہتے ہیں لیکن ان کو اسکول نہیں ملتی. اب بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر میں اور ایسی اسکول جہاں پابندی کے ساتھ بہت لڑکیاں آ رہی تو برقعے کے ساتھ آ رہی ہیں. کتنے لڑکیاں ایسے ہیں جہاں بالکل خاص کپڑے پہن کر جانا پڑتا ہے، بڑی بڑی لڑکیاں، اور اس کا قانون ہے، پردہ تو دور کی بات، حجاب تو دور کی بات، قانون ہے، جانا ہی پڑتا ہے. افیشلس لوگ کے لڑکیاں آرام سے جاتے ہیں. اب بتاؤ
कोई गिने चुने स्कूल है जहाँ नाम है इस्लामी स्कूल, जो नाम है मुस्लिम स्कूल, मुसलमानों की स्कूल है, लेकिन अंदर दीन नहीं सिखाया जाता, दीन इसके नहीं सिखाया जाता। तो जितने पीरियड से सारे पीरियड पढ़ाते रहते हैं, जितने सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, लेकिन मेरा निखबा का कोई सब्जेक्ट नहीं है और दीनियात का कोई सब्जेक्ट नहीं है। अगर सब्जेक्ट रखते भी है तो हफ्ते में एक मरतबा रखते हैं, वो पढ़ाए ना पढ़े बता दें कि हम भी कुछ दिन पढ़ा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सारा निजाम स्कूल की यानी असली तालीम, दुनियावी तालीम में कमी नहीं होनी चाहिए और दीनी तालीम में भी कमी नहीं होनी चाहिए। हमारे स्कूल का हर बच्चा